Commerce, to welcome our chairperson, Professor Govind Singh, with a beautiful bouquet. Thank you, sir. I would now request Professor Govind Singh to kindly felicitate keynote speaker, Professor Chatterjee. Thank you, sir. I would now request our registrar, sir, Shri L.S. Rawat, to present flowers to our guest of honor, Professor R.C. Pant, as a token of gratitude and respect. I would also request Professor J.K. Joshi, Director, School of Education, to felicitate our guest of honor, Professor R.K. Tripathi, by offering floral bouquet. Thank you, sir. Now I would request Dr. Gagan Singh to kindly present a bouquet of flowers to our very own Director, School of Management Studies and Commerce and Director Academics, Professor R.C. I would now request Mrs. Priya Mahajan to felicitate Dr. Gagan Singh, Organizing Secretary, by offering a bouquet. Thank you, ma'am. I now request convener of this conference, Director, School of Management Studies and Commerce, Professor R.C. Mishra, the man of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge and experience and inspiration to all of us, to formally welcome and to introduce the theme of the conference. Thank you, Manjali. Chairperson of this inaugural session, Acting Vice Chancellor Professor Govind Singh, Guest of Honor and Member of our Academic Council, Professor R.C. Pant, the ex-Vice Chancellor of Kumar University, Professor R.K. Tripathi, formerly Head and Dean, Faculty of Commerce, Department of Commerce and Faculty of Commerce, Lucknow University. Keynote speaker in this session and a wonderful orator, my dear friend, formerly Head Department of Commerce and Dean, Faculty of Commerce, Lucknow University. Distinguished guests present in the hall, my fellow teachers, Professor J.K. Joshi, Professor H.P. Shukla, Professor Girija Pandey, the senior people, our teachers who have come here to bless us, Professor I.S. Nayak, again ex-Vice Chancellor of Kumar University, Professor C.S. Mayer, Professor Bali from HP University, Shimla, Professor S.K. Srivastav, Head and Dean, Faculty of Commerce, HNB Garhwal Central University, Garhwal, Professor Prem Mohan, Shakuntala Mishra, Rehabilitation University, Lucknow, Dr. Sunil Batra, Dr. N.C. Pandey, Dr. Hema Prasad,
and many others. It's difficult to name each and every person because that way I'll be taking a long time. So I greet everybody in totality with all my humility and a lot of respect. I welcome you all to this conference. The theme of the conference has somehow been explored by Dr. Manjari. She has done the justice by speaking about a few issues which really matter and which are really important. But I think I may add to that, not much of course, very little. The first thing which I wish to say is not related to conference at all. Unfortunately, in today's world, it's very difficult for us to organize such events. It's very, very difficult. Especially difficult for the state universities in operating under the public sector system. Individual problems, personal tensions, personal preoccupations dominate the urge to participate in the professional events, in the professional commitments. And as a result, many of the friends who have not been able to participate in this conference, I welcome them in absentia. Our Honorable Vice Chancellor, who has been the spirit behind the organization of this event, once again unfortunately is not with us because his mother has suffered a serious injury and she is to undergo operation. Otherwise he would have been here and he would have graced the occasion, so we really miss his presence at the moment, but in absentia I do remember him and I welcome him with all the warm feelings of my heart. Members of the media, my dear students and my dear colleagues. Now, I would like to come to some fundamental questions. And maybe, usually in these conferences and presentations, people come with a prepared script, so it's very difficult for them to switch over. But I believe if one can switch over and deliberate upon the issues which are raised in the course of the event, that would be much better. Now I wish to raise a few questions, especially for my seniors, the senior teachers of commerce who are present here, including my own teacher, Professor R.K. Tripathi. My first question to all the teachers of commerce is, how many students of commerce have qualified in civil services till now? If not, why? Why do commerce, now some sub-questions. Why do commerce students have the choice of only one subject in civil services examination? Only one paper and its name is Commerce and Accountancy, और जैसे पंचामृत बनाया जाता है उस तरह से उसमें सारे विषय डाल दिए गए हैं, कोई भी विषय छोड़ा नहीं है विद्वानों ने। और एक चीज है, दूसरा पेपर जो हमारा मैनेजमेंट हो सकता था उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि आप दोनों पेपर एक साथ ले नहीं सकते। दूसरा इसका सबसेट है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नो एंट्री और रेयर एंट्री ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन सिविल सर्विसेज। आज अगर हमारा कॉमर्स का टीचर रिटायर होता है, सचिवालय में कोई उसका मान लीजिए पेंशन से रिलेटेड काम है और वो जाए, तो वहां सचिव जो मिलेंगे वो कभी या तो साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे या सोशल साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे। आपका विद्यार्थी पैर छूने के लिए नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता कि सिविल सर्विस में क्वालिफाई करना श्रेष्ठता का पैमाना है, नॉट एट ऑल। लेकिन जब डॉक्टर, एमबीबीएस, इंजीनियर सिविल सर्विस में क्वालिफाई कर सकते हैं, जिनके पास मतलब भर का ऑप्शन है,
कॉमर्स के बच्चे क्यों नहीं कर पाते? और मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे नॉलेज में अभी तक 1 या 2 विद्यार्थी हैं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने क्वालिफाई किया है विद कॉमर्स एज वन ऑफ द ऑप्शनल्स। तीसरा सब क्वेश्चन है, व्हाई हैज कॉमर्स लार्जली रिमेन्ड ए सिंगल डिपार्टमेंट फैकल्टी? पूरे हिंदुस्तान में कॉमर्स कहेंगे और इसका मतलब हो गया कि एक डिपार्टमेंट हो गया। कॉमर्स एक विषय नहीं है, कॉमर्स विषयों का एक बहुत बड़ा समूह है। क्या हमने कभी कोशिश की कि हम कहें कि कॉमर्स एक विषय नहीं है? हम में से कितनों ने कोशिश की कि कॉमर्स एक विषय नहीं? अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, इज कॉमर्स a subject or a basket of subjects? My second question is, why is it that commerce students are not the only natural choice for A, further studies, MBA, CA, CS, ICW? ऐसा क्यों है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन लिखा जाता है वहां? कॉमर्स वालों के लिए स्पेशली उसमें मौका क्यों नहीं मिलता, जबकि 99% सिलेबस कॉमन है? 99% सिलेबस कॉमन है। दूसरा, पहला था फर्दर स्टडीज, बी फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस इन द सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्स ऑफिसर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ द टैक्सेस, और यहां तक कि सरकारी विभागों में जो फाइनेंस ऑफिसर आज की तारीख में है, मैं अपनी फाइनेंस ऑफिसर से भी उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति में क्षमा याचना के साथ ही कहना चाहूंगा, कितने फाइनेंस अफसर हैं जिन्होंने एमकॉम कर रखा है? कि ये एरिया एमकॉम वालों के लिए रिजर्व क्यों नहीं? ये कभी देखिए सरकार की कम है, हमारी ज्यादा है, इसीलिए हम यह मंथन करने बैठे। थर्ड क्वेश्चन, why is it that in commerce at undergraduate level one finds a large number of bright and intelligent students, but at the PG level one hardly finds good students, and that if at all there are about 60 or 70 students enrolled, only 15 or 20 are present in the class? 60 और 70 विद्यार्थी अगर इनरोल्ड हैं तो 15 विद्यार्थी क्लास में आ गए तो भाग्य मानिए कि आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, विद्यार्थी कक्षा में आ गए। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है, क्या कॉमर्स इतना सस्ता है कि प्राइवेटली भी कोई कर ले? क्यों हमने प्राइवेट अलाउ किया है? प्राइवेट एजुकेशन का मतलब क्या है? डिस्टेंस में तो हम काउंसलिंग देते हैं, यहां क्लासेस होते हैं, मगर प्राइवेट का क्या मतलब हुआ? हाउ कैन कॉमर्स बी अलाउड एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स? अगला सवाल चौथा है मेरा, ऐसा क्यों है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक भी स्कॉलरशिप कॉमर्स के नाम से नहीं आती, कोई फेलोशिप कॉमर्स के नाम से नहीं आती? अकाउंटिंग में है, बिजनेस में है, मार्केटिंग में है, HR, कॉमर्स जैसा नाम कहीं दुनिया में प्रयोग नहीं होता। जितनी स्कॉलरशिप, जितनी वैकेंसीज निकलती हैं, सब अलग अलग डिसिप्लिन से आती है। पांचवा सवाल, ऐसा क्यों है कि वाणिज्य के विद्यार्थियों में स्थायी रूप से निम्न कमियां पाई जाती हैं? मैं अपनी कमियां गिना रहा हूं। कॉमन वीकनेस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, मैथ्स एंड करंट अवेयरनेस, इवन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस, ट्रेड, मनी मार्केट्स, स्टॉक मार्केट, मॉनिटरी इश्यूज। इन इश्यूज पर आप वाणिज्य के विद्यार्थियों से चर्चा करिए तो आप देखेंगे उनका सामान्य ज्ञान भी कमजोर होगा, और भाषा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% केसेस में हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो है आपको कमजोर मिलेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा, एक हमारे यहां बड़ा विचित्र मामला है, जो अकाउंटिंग पढ़ाता है वही एक विद्वान अध्यापक माना जाता है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। इसको मैं कहता हूं अनड्यू न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एप्लीकेशन पार्ट है वो पीछे छूट जाता है, और वो सवाल लगा लेता है, वो बार बार कहता है C माइनस वेरिएबल कॉस्ट VC इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सॉरी S माइनस B इज इक्वल टू C कंट्रीब्यूशन। और उससे पूछ दो भैया कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उसके बाप दादे को नहीं मालूम है कंट्रीब्यूशन किस बीमारी का नाम है, इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों हो गया। एप्लीकेशन पार्ट गायब है, आपने सवाल लगा लिया, बस बहुत बड़ी बात हो गई, इसके आगे कुछ नहीं। और नंबर आएंगे 80%, 90%, 95%। भाई एप्लीकेशन पार्ट भी तो है। Why is it that we have this undue numerical orientation? No upgradation, revision of contents over the years
only the names and titles of papers have changed. सर मैं उत्तराखंड का अनुभव यहाँ पर है और जगह का नहीं। बिजनेस लॉ हुआ करता था, हमारे मर्केंटाइल लॉ पेपर का नाम था। नाम यूजीसी के इंसिस्टेंस के बाद बदला गया और हो गया बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और कोर्स कंटेंट में एक धेले का परिवर्तन नहीं हुआ, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं। केवल एक बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ाता था, मैंने उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया था, बाकी किसी विषय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स का नाम हो गया क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। Why is it that contents overlap so much? कंटेंट ओवरलैपिंग देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में सीबीएसई और आईएससी दोनों सिलेबस में वही है जो बीकॉम 1 में है। इसके बाद बिजनेस फाइनेंस के टॉपिक्स में तो ये बुरा हाल है, फंड फ्लो, मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी, सारा का सारा कॉमन है, कोई फर्क नहीं है। एक बार लड़का वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ता है और एक बार वही जो है वो बिजनेस फाइनेंस में पढ़ता है और उसके बाद कभी कभी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ लेता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। बीकॉम सेकंड के एग्जामिनेशन में कुमाऊं विश्वविद्यालय में सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन आया। ये मीनल उस वक्त बीकॉम 2 में थी और बीकॉम 3 में इसका सीनियर बैच था। और वो क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा बड़ा छोटा सा है लेकिन थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। तो थर्ड ईयर के बच्चे, शाम में एग्जाम था, वो मेरे पास मिलने आए। मैंने उनसे कहा देखो ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसको जरा लगा के देखो। तो एग्जामिनेशन हरी होती है, बच्चे बोले लग जाएगा सर, लगा देंगे। मैंने कहा नहीं 2 मिनट रुको, कागज देता हूं, लगा के दिखाओ। लगाया, फ्लॉप हो गए, नहीं लगा पाए। तो मैंने उन्हें ट्रिक बताई, मैंने कहा ऐसे लगाओ तो लग जाएगा। और किस्मत से जब वो गए इम्तिहान देने तो बीकॉम 3 में भी सेम क्वेश्चन वर्बेटिम विद सेम लैंग्वेज रिपीटेड था। और इंडिया यही नहीं रुकी, एमकॉम फाइनल में भी यही क्वेश्चन वर्बेटिम विद द सेम लैंग्वेज रिपीट हुआ। और मैंने ये लिख के दिया था विश्वविद्यालय को कि अगर एमकॉम का प्रश्न था तो बीकॉम से क्यों पूछा गया, और अगर बीकॉम का प्रश्न था तो एमकॉम से क्यों पूछा गया। अगर एमकॉम लेवल का था तो विद्यार्थी के विषय ज्ञान की नहीं बल्कि उसके धैर्य की परीक्षा ली जा रही थी, और अगर बीकॉम 1 के लेवल का था, 2 के लेवल का था, तो एमकॉम में पूछने पर परीक्षा व्यवस्था का मजाक मखौल उड़ाया गया। ये ओवरलैपिंग का हाल है। Why do we not have any specific or professional orientation for commerce student? This is my 7th question. जैसे लॉ पढ़ता है लॉयर बनता है, मेडिसिन पढ़ता है डॉक्टर बनता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है इंजीनियर बनता है, एमबीए पढ़ता है वो भी मैनेजर बनता है, और जो एमकॉम करता है उसके आगे बिग क्वेश्चन मार्क है, वो बेचारा क्या करे। क्यों नहीं आप उसे अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्चुरियल साइंस, सिक्योरिटीज एनालिसिस, इंटरनेशनल बिजनेस, कॉर्पोरेट लॉस, कॉर्पोरेट टैक्स लॉस, फाइनेंस ऑफिसर्स, अकाउंटेंट्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल डेवलपमेंट, व्हाट नॉट? डिड वी एवर ट्राई? खतरा यह था कि दूसरा हेड ना हो जाए कहीं मेरे बगल में। हेड सिर्फ मैं बना रहूंगा सारी जिंदगी, दूसरे को हेड नहीं बनने दूंगा, और इसलिए डिपार्टमेंट हमने नहीं बनने दिए। और डिपार्टमेंट नहीं बनने देने का नुकसान हुआ कि आज सिविल सर्विसेज के सिलेबस में हम नुकसान उठाते हैं। आप देखिए साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपके सामने एनॉमली देता हूं। मैंने बीए किया, चटर्जी साहब ने बीएससी किया, गोविंद जी ने बीकॉम किया। बीए करा मैंने, 18 पेपर पढ़े। चटर्जी साहब ने बीएससी किया, 18 या कहीं कहीं 3 है इसलिए हो सकता है 20 पेपर पढ़ लिए, और गोविंद जी ने बीकॉम किया, इन्होंने भी 18 पेपर किए। और जब ये आईएएस के इम्तिहान देने जाएंगे तो गोविंद जी को एक सब्जेक्ट मिलेगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, और मैंने बीए किया था लिहाजा मुझे हिस्ट्री भी मिलेगा, सोशियोलॉजी भी मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगा, तीनों इंडिपेंडेंट ऑप्शन है। जिसने साइंस किया उसको जूलॉजी भी मिलेगा, बॉटनी भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, मैथमेटिक्स भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, सारा मिलेगा। अरे भाई बेसिक एक्सपोजर तो बच्चे का ग्रेजुएशन लेवल पर 3 सब्जेक्ट्स में है। आपने तो कभी सब्जेक्ट कहा ही नहीं। आप तो हमेशा कहते रहे कॉमर्स एक पेपर है, एक पेपर है। जब कॉमर्स का डीन बैठता है वाइस